going to learn electron diffraction spectroscopy. And to understand this topic, let us start with the word spectroscopy. You all are aware already with this word that it is a technique in which we try to get information about the structure of any material which may be in the form of solid, liquid or gas by studying the interaction of radiation with that material. Okay, and to understand this topic, there are some prerequisites in which the first is diffraction and scattering. We have already discussed about these two words, so I am not going in detail with these words, but we will use the condition of these phenomenon. What is that condition? The condition of diffraction and scattering is the wavelength of the interacting radiation must be comparable to the size of that particle, or it may be a gap. Okay, so why we have taken here as a diameter? Because in the smaller scale we do not know the shape of that particle, so for simplicity we always consider it as a diameter, or it may be a gap, it may be separation also. Okay, and the second prerequisite is the phenomenon of wave particle duality. Okay, it is also known as de Broglie hypothesis. It is also known as de Broglie hypothesis, which tells us that any particle in motion behaves like a wave, and the wavelength associated with the particle can be calculated by using de Broglie formula, which is lambda equal to h upon p, where h is known as Planck's constant and p is the momentum of that moving particle. Okay, this is all about prerequisite. So let us start the principle of electron diffraction spectroscopy. Okay, electron diffraction spectroscopy is based on the de Broglie hypothesis of wave particle duality, which says that any particle with momentum p is associated with a wave of wavelength lambda equal to h upon p, where h is Planck's constant and p is already given that it is a momentum. The electron momentum is not easy to calculate, so we have to find some alternate way to replace it. Okay, so we know that if the electron has kinetic energy k, then P can be written as under root 2 mk, because kinetic energy is given as P square by 2m. Okay,
where m is the mass of electron, where me is mass of electron, hence that is lambda will be equal to h upon under root 2 mk. But now again the similar problem occurs, how to measure kinetic energy. Okay, so we have already information about the kinetic energy, that if electrons are accelerated using a potential difference of v, then using the law of conservation of energy, we can write kinetic energy equal to E into V, where E is charge on electron, charge of electron on electron, both are same, and then we get lambda equal to h upon under root 2 me into ev. Okay, now we can easily calculate the wavelength of accelerated electron. Putting the values h equal to 6.6 into 10 power minus 34 joule second, me is 9.1 into 10 power minus 31 kg, and charge of electron 1.6 into 10 power minus 27 coulomb, we get lambda equal to 12.27 upon under root v angstrom. Always remember it is in angstrom. Okay, then we see that if we have a potential difference v, then wavelength of electron can be calculated using this formula. This wavelength can be made comparable to the internuclear separation and using diffraction pattern one can determine the bond length and angle between bonds in molecules. Also arrangement of atoms in any sample, etc. Hence
electron diffraction can provide a lot of information about the structure of materials. So this was the principle of electron diffraction spectroscopy. Okay. इसमें एक और ख़ास बात है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बॉन्ड लेंथ लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, 2 एंगस्ट्रॉम या कभी कभी 1 एंगस्ट्रॉम से कम भी होती है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग 100 वोल्ट भी अप्लाई करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.2 एंगस्ट्रॉम के पास, जो कि कंपेरेबल हो जाएगी बॉन्ड लेंथ के। यानी कि हम लोग बहुत ही कम एनर्जी अप्लाई करके ही हम लोग डिफ्रैक्शन करा सकते हैं और डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देगा। ओके। और हम लोगों ने देखा प्री रिक्विजिट में कि यहाँ पे डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग जैसी फिनोमिना हो रही है, लेकिन यहाँ पे ख़ास बात है कि ये दोनों फिनोमिना एक साथ होती हैं। ओके। तो यहाँ पे अगर कोई थ्योरी आती है तो ये दोनों वर्ड एक साथ यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप लोग एक बार चेक करिएगा अपने नोट्स में कि डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग क्या होती है, तो आपको पता चलेगा कि डिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है कि लाइट अपने स्ट्रेट पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है, और अगर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वहाँ पे स्कैटरिंग प्रोसेस भी हो सकता है। डेफिनेशन देख के आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, our next topic is scattering intensity. Scattering intensity and scattering angle. Scattering angle. Okay. Actually, in this topic, we are going to find the relation between scattering intensity and scattering angle. You have already aware with electron diffraction spectroscopy that in this spectroscopy we are going to find some information about bond length and bond angles. Okay. That bond length and bond angle can be found using this relation. So we are going to study this relation. Okay. So let us start this. Consider the simplest diatomic molecule. Okay. Because for a larger molecule we are unable to get a theory to find the relation between scattering intensity and scattering angle. Okay. So we assume the simplest molecule of the type AB, and let the atom A lies at the origin and B at a distance r away as shown in the figure, and it will be a random orientation. Okay. सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लीजिए। कंसीडर। ओके। अब हम लोग मान लेते हैं कि जेड एक्सिस से जो मॉलिक्यूल हमारा है, क्योंकि इसका रैंडम ओरिएंटेशन हम लोग ले सकते हैं, तो ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है। ओके। तो एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी वेक्टर को वी कैन रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. This process is known as resolution of vectors, and the horizontal component will be, if there is a vector A, then horizontal component will be A cos theta, and the vertical component will be A sin theta. Okay. These components are also known as projections. Okay.
और अगर इन दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के डायरेक्शंस को हम लोग एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मान लें, तो इन कंपोनेंट्स की लंबाई को हम लोग मेज़र कर सकते हैं बाय ड्राइंग ए परपेंडिकुलर ऑन बोथ एक्सिस फ्रॉम द हेड ऑफ दैट वेक्टर। यानी कि वेक्टर ए के हेड से हम लोग कोई परपेंडिकुलर अगर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे खींचें, तो एक्स एक्सिस वाला परपेंडिकुलर ड्रा करने पे जो लेंथ मिलेगी वो ए कास थीटा होगा, और वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करने पे मिलेगा कंपोनेंट वो होगा ए साइन थीटा। ओके, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ए बी की लेंथ आर है, तो अगर हम लोग इसका परपेंडिकुलर ड्रा करें इन द एक्स वाई प्लेन, देन वी विल गेट ए पी एज द कंपोनेंट ऑफ ए बी। ओके, और बी पी जो है परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई प्लेन में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ द orientation of the molecule AB is specified by angles alpha and phi. What is phi? Phi is the direction, or you can say angle between the projection of AB and x-axis. This is phi. Okay, let the incident electron beam enters parallel to y axis. ओके, अब अगर हम लोग मान लें कि कोई इलेक्ट्रॉन बीम वाई एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट हो रही है, तो ये साइमल्टेनियसली ए पर भी इंसिडेंट होगी और बी पर भी इंसिडेंट होगी। ओके, बुक में केवल ए पे ही दिया है तो कंफ्यूज हो रहा होगा, हो सकता है। तो हम लोग मानेंगे कि ये ए पर भी और बी पर भी इंसिडेंट हो रही है, तभी तो ये कंपेरेबल होगी इसकी वेवलेंथ किसके, आर के, तो ये डिफ्रैक्शन मिलेगा हमको। इंटर्स पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड डिफ्रैक्शन occurs through an angle theta from y axis. Why we have taken theta from y axis? Because the incident direction is y axis, then we can take the diffracted direction from y axis as theta. Okay, if this angle is theta and this angle is phi, then what will be this angle? This angle will be what will be this? Theta plus phi minus 90. How? Because angle between x and y axis is 90 degree, then we can write this angle as 90 minus phi. Okay, and this angle is theta and this angle is 90 minus phi, then this angle will be theta minus 90 minus phi, that means theta plus phi minus 90. Okay, also AP is the projection of AB, and I have already told you that AP is the projection of AB. Projection of AB, sorry, length AB, because we have already specified AB as
the diatomic molecule. So we have to clear it here that length is AB. Okay, in XY plane, then इस केस में हम लोग AP के प्रोजेक्शन को हम लोग इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं और AP के प्रोजेक्शन को इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। मतलब अगर हम लोग AP के प्रोजेक्शन को हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम लिया जाए तो इसका प्रोजेक्शन मान लेते हैं हमको AN मिलता है। इस डायरेक्शन में AP का प्रोजेक्शन AN मिलता है और AP का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन Y एक्सिस मतलब इंसिडेंट डायरेक्शन में हम लोगों को AM मिलता है, AM। ओके, देन AN will be projection of AP along diffracted beam and AM will be projection of AP along incident beam. Now the diffraction pattern will be observed when the wave scattered from A and B superimpose on each other and it will depend on the difference between the lengths of the paths they traverse। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि एक बीम A से डिफ्रैक्ट होके जा रही है, दूसरी बीम B से डिफ्रैक्ट होके जा रही है। ये दोनों डिफ्रैक्टेड बीम्स जाके सुपर इम्पोज होंगे और स्क्रीन पे हमको कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रिंज मिलेगा। एक्चुअल में ये डिफ्रैक्टेड फ्रिंज होंगे, लेकिन मैंने ये वर्ड यूज़ किया है इंटरफेरेंस बिकॉज देयर इज़ ए सुपर पोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स, और सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। ओके, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक बीम यहाँ से जा रही है, दूसरी बीम यहाँ से जा रही है डिफ्रैक्ट होके, और डिफ्रैक्शन होगा। इसका मतलब कि यहाँ से इन दोनों एटम के बीच में जो गैप है उसके कंपेरेबल इसका वेवलेंथ होगा, तो ये अपने पाथ से बेंड हो जाएगा। यही प्रोसेस तो होता है डिफ्रैक्शन। और जब ये बेंड हुआ तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस आएगा। और अगर आप लोग इंटरमीडिएट किताब में डिफ्रैक्शन की थ्योरी पढ़ेंगे तो वो पाथ लेंथ ही रीज़न बनता है डिफ्रैक्शन पैटर्न का। तो इस केस में हमको डिफ्रैक्शन फ्रिंज जो है हो सकता है कि लाइन के फॉर्म में मिले इस तरह का, या तो हो सकता है सर्कल के फॉर्म में मिले, और जनरली ये सर्कल के फॉर्म में ही मिलता है। और ये सर्कल हमको दिखाई देते हैं एक इसके आगे, ये जो डिफ्रैक्टेड बीम जाएगी वो एक फ्लोरोसेंस स्क्रीन पे जाके फॉल होंगे, तो फ्लोरोसेंस स्क्रीन पे जाके इस तरह का पैटर्न बनाएंगे और
इसकी इंटेंसिटी और सेपरेशन के मेजरमेंट से हमको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है स्ट्रक्चर के बारे में। और आल्सो वी कैन डिराइव ए रिलेशन ऑफ लैम्डा फ्रॉम दिस इंटरफेरेंस सॉरी डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, और इस पैटर्न में जहाँ जहाँ पे हम लोगों को हाई इंटेंसिटी मिलती है उसको हम लोग कहते हैं कि उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। ओके, या फिर कहें कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ है। और जहाँ पे इंटेंसिटी लो मिलेगी या ज़ीरो मिलेगी वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा होता है। ओके, और अगर ये इलेक्ट्रॉन बीम मोनोक्रोमेटिक बीम है, यानी कि इसकी वेवलेंथ जो है हर इलेक्ट्रॉन की सेम है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमेशा हाईएस्ट और ज़ीरो इंटेंसिटी का मिलेगा। तो in the case of constructive interference, or you can say in the case of constructive superposition, in the case of constructive superposition, that is कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन तभी हो सकता है व्हेन m and n आर इन फेज and the path difference will be m and n आर इन फेज। का मीनिंग क्या है? यहाँ से देखिए, एक डिफ्रैक्शन बीम मिली हमको, डिफ्रैक्टेड बीम मिली, कुछ पोर्शन इसका सीधे भी जाता है, मतलब कि विदाउट इंटरेक्शन भी जाता है। तो वो पोर्शन और ये पोर्शन दोनों अगर फेज में हैं, मतलब ए एन और ए एम, ये दोनों बीम अगर फेज में हमको मिलते हैं तो इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। ये डिफ्रैक्शन की थियरी है एंड डिस्कशन अबाउट दिस इज बियॉन्ड ऑफ आवर दिस टॉपिक। ओके, सो द डिफरेंस विल बी path difference always shown as delta equal to a n minus a m. Okay, now we know that a and a m are projections of AP along the diffracted beam and along the incident beam. Okay, then we can write it as an will be, you can say here an is this and it is a projection of AP, then we can write an equal to AP cos this angle, so it will be AP cos theta plus phi minus 90 minus, similarly this can be written as AP cos 90 minus phi. This angle is 90 minus phi. Then AP का प्रोजेक्शन इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन में AM होगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं AP cos 90 माइनस फाई। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम लोगों ने एक इसका कंपोनेंट लिया AN एक कंपोनेंट लिया तो इसका साइन थीटा वाला पोर्शन इधर होना चाहिए। नहीं, साइन थीटा वाला तभी होगा जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा, और हमको नहीं पता है कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, और हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि एक एक्सिस है x और y, केवल यही दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अगर एक AN लिया हमने तो और दूसरा AM लिया तो AN और AM कभी परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता है। तो हमको केवल AP का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट AN मिलेगा और AP का ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस एंगल के रिस्पेक्ट में AM मिलेगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखे हैं। ओके, नाउ आल्सो वी नो दैट AP इज प्रोजेक्शन ऑफ AB and AB is aligned at angle alpha from the Z axis. Then in the Z axis there will be horizontal component, I mean R cos alpha,
and its vertical component will be AP, which is R sin alpha. Means AP is equal to R sin alpha. Okay, then we can write AP, और हम लोग देखते हैं कि AP दोनों में है तो हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे R साइन अल्फा बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा प्लस फाइव माइनस 90 माइनस cos 90 माइनस 5। ओके, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस AP इज इक्वल टू R साइन अल्फा। नाउ using trigonometric rules we know that cos theta plus 5 minus 90 will be equal to cos theta sorry this angle can be written as minus 90 minus let me write it cos minus 90 minus theta plus 5. Okay, and it will be cos 90 minus 5 will be sin 5. now R sin alpha cos minus theta होता है, एक ब्रैकेट यहाँ पे एक ब्रैकेट वहाँ पे, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। ओके, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा प्लस 5, और cos 90 माइनस थीटा प्लस 5 हो जाएगा साइन थीटा प्लस 5 माइनस साइन 5। ओके, now using another trigonometric rule we can write it as R sin alpha. This is a formula known as sin C minus sin D, और इसको sin C माइनस sin D का फार्मूला अगर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ये इक्वल हो जाएगा 2 cos C प्लस D बाई 2 and it will be 5 plus theta by 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2, sin C minus D करेंगे तो थीटा बाई 2। ओके, that is we have found a path difference equal to 2R sin alpha sin theta by 2 into cos 5 plus theta by 2 in the case of constructive superposition। ओके, अब यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करिएगा कि किसी भी वेव को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि फार्मूला होता है साई इक्वल टू A0 e पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, वेयर ओमेगा टी माइनस के एक्स इज आल्सो नोन एज फेज ऑफ द वेव। ओके, और फेज को जनरली फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एंगल रिप्रेजेंट किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया है। ओके, and wave function is nothing but the amplitude of the wave at a particular position and particular time। ओके, और अगर यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं कि एक वेव जो है ए से डिफ्रैक्ट हो रही है, दूसरी जो है बी से डिफ्रैक्ट हो रही है, और दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दोनों के एम्पलीट्यूड जो हैं ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को ए मान लें, यहाँ पे मैंने साई से रिप्रेजेंट किया है, तो अब हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लेने जा रहे हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा, साई 1 प्लस साई 2 के इक्वल होगा। और साई 1 को हम लोग लिख सकते हैं A0 e पावर आई बीटा 1 प्लस A0 e पावर आई बीटा 2। ओके, अगर हम लोग मान लें कि जो फर्स्ट वेव है
उसका फेज़, इनिशियल फेज़ मतलब जीरो मान लेते हैं, तो हम लोग उसके रिस्पेक्ट में फेज़ डिफरेंस शो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग फेज़ डिफरेंस शो करना चाहें तो हम लोग शो करेंगे कि β2 माइनस β1 होगा फेज़ डिफरेंस। और अगर एक वेव के फेज़ को हम लोग ज़ीरो मान लें, यानी कि जीरो के रिस्पेक्ट में हम लोग फेज़ डिफरेंस मेज़र करना चाहें, तो β1 को हम लोग ज़ीरो लिख सकते हैं। ओके। और एक और रिलेशन आप लोग डिफ्रैक्शन थियरी में, इंटरफेरेंस थियरी में आप लोग ऑप्टिक्स की किताब में मतलब इंटरमीडिएट किताब में पढ़े होंगे कि फेज डिफरेंस इक्वल होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस के। ओके। तो इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं A0, क्योंकि हमने इनिशियल फेज जीरो मान लिया तो e⁻0 हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, प्लस A0 e⁻i β2 की जगह हम लोग बीटा ही लिख देते हैं। ओके। और अगर हम लोग फेज डिफरेंस में देखा जाए तो β2 यहाँ पे इसको जीरो करने के बाद β2 यानी कि बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2π/λ डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ पे हम लोग बीटा की जगह पे लिख सकते हैं A0 प्लस A0 e⁻2πi डेल्टा/λ। ओके। तो ये डेरिवेशन उम्मीद है कि आपको समझ में आया है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ओके। सिंस द फेज डिफरेंस ऑफ टू scattered waves will be 2π/λ into delta, then assuming that the atoms A and B आइडेंटिकल, अगर हम लोग A और B को आइडेंटिकल मान लें तो उस केस में ये दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। आइडेंटिकल, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आफ्टर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन will be A equal to A0 plus A0 e⁻2πi delta/λ. Okay, where A0 is also known as atomic form factor for electron scattering, which depend on the nuclear charge of the atom. Okay, I hope up to this everything is clear. Okay, now the intensity of resultant radiation at the photographic screen can be calculated using फार्मूला होता है, आप लोग याद रख लीजिए या फिर आपको पता होगा
एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वेयर दिस मॉड रिप्रेजेंट्स दैट इट इज़ ए multiplication of a and a bar, where a bar is known as complex conjugate of a. ओके, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है? अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इन द फॉर्म a प्लस आई बी, ओके, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम लोग लिख सकते हैं सिंपली रिप्लेसिंग i विथ माइनस आई। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा a माइनस आई बी, क्योंकि i को बस केवल रिप्लेस कर देना है माइनस आई से। ओके, तो वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मिल जाएगा। तो हम लोग अगर ए बार कैलकुलेट करना चाहें तो हमको पता है ए की वैल्यू है ए नाट प्लस ए नाट ई पावर 2 पाई आई डेल्टा बाई लैम्डा। तो ये तो ए है, इंटू ए बार करना है, तो ए नाट प्लस ए नाट ई पावर माइनस 2 पाई आई डेल्टा बाई लैम्डा। ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग you will find that it will be equal to a naught square 2 plus e power minus 2 pi I delta by lambda plus e power 2 pi I delta by lambda. Okay, now one more formula we are going to use, that is Euler formula. Euler formula tells us that e power I theta is equal to cos theta प्लस आई साइन थीटा। ओके, अगर यहाँ पे ये इन दोनों के जगह पे इस फार्मूला से रिप्लेस किया जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए नाट स्क्वायर टू ए नाट स्क्वायर 1 प्लस कास 2 पाई लैम्डा बाई डेल्टा। नाउ वी आर गोइंग टू यूज अनदर फार्मूला cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फार्मूला को अगर फिर से यहाँ पे यूज़ किया जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं आई विच विल बी आई एंड इट विल बी इक्वल टू 4 ए नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर पाई डेल्टा बाई लैम्डा। ओके,